गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टूडेंट हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट और उस पार्ट का नाम था एवलिन गैलेनी। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट का नेम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पार्ट 2 है, एवलिन गैलेनी पार्ट फर्स्ट है। यानी ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट एवलिन गैलेनी जो हम लोग फिनिश कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और सेकंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे और उसमें हम लोग शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल द स्टूडेंट मस्ट वॉच in their books. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for the reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A power of a family of professionals musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes onto the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai. The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for the reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of the 9 instruments found at the royal courts. Till recently, it was used only in temples and the weddings. The credit for the bringing this instrument onto the classical stage goes to the Ustad Bismillah Khan. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state in Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaitha, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to 80 years ago, earned the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family to the musicians from Bihar. His grandfather, Rasul Baksh Khan, was the Senai Nawaz of the Bhojpur King Court. His father, Paigambar Baksh, and other paternal ancestors were also great Shehnai players. The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of the Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai. All would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for the hours to end. Slowly he started getting lessons playing the instrument
and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and the Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. The flowing water of the Ganga inspired him to improve the inventor ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. Let's explain this chapter. You carefully listen the explanation and understand it. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called the pungi. एक बादशाह था, आपने मुग़ल बादशाहों का नाम सुना होगा। उन मुग़ल बादशाहों में एक बादशाह था जिसका नाम था औरंगज़ेब। बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल पुंगी। तो उसने बैन कर दिया था, मना कर दिया था कि उसके दरबार में, उसके राजकाज में कोई पुंगी नहीं बजाएगा। आपने पुंगी सुनी होगी, आपने सपेरों को देखा होगा, जो सांप लिए रहते हैं वो लोग पुंगी बजाते हैं। तो उस पुंगी को बजाने के लिए औरंगज़ेब ने सबको मना कर दिया था कि उसके राजकाज में कोई पुंगी नहीं बजाएगा। इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ स्टिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसने कहा था कि इसका जो साउंड है, उसका जो म्यूज़िक है वो अनप्लीजेंट है, यानी कि मन को भाता नहीं है, लुभावना नहीं है, अनप्लीजेंट है, यानी सुखमय नहीं है, इसमें कोई भी सुख नहीं है इस म्यूज़िक को सुनने में। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइस मेकर। पुंगी नेम ऐसा है जो बहुत सारे संगीतकों ने, नॉइस मेकर ने, जो संगीत, जो ध्वनि निकलने वाले जो इंस्ट्रूमेंट थे, उन इंस्ट्रूमेंटों में उन लोगों ने इसका नाम, ये जो इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, इसका नाम पुंगी रखा हुआ था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। बहुत सारे लोगों का ये मानना था, ये सोचना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुग़ल एम्परर जो है औरंगज़ेब, वो इसको जो है ओपन कर देंगे और सारे के सारे फिर से बजाने लगेंगे, पुंगी बजने लगेगी और इसका जो बैन है इसके ऊपर ये खुल जाएगा एक दिन। A barber of a family of a professional musician who had access to the royal place. एक नाई था जो कि रॉयल दरबार में हमेशा जाता रहता था और वही प्रोफेशनल भी था, वो म्यूज़िक भी बजाया करता था, वो अपने म्यूज़िक में महारथी भी था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। तो उसने ये डिसाइड कर लिया, ये निश्चय कर लिया, ये जो पुंगी है इसकी जो टोन है, जिस टोन से बादशाह को परेशानी होती है, उस टोन को ही बदल दिया जाए, कुछ लुभावना, कुछ प्लीजेंट, कुछ सुहावना, कुछ स्वीट, ऐसा साउंड, ऐसा म्यूज़िक प्रोड्यूस किया जाए जो कि बादशाह को अच्छा लगे। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम। उसने एक ऐसे पाइप का चुनाव किया, एक ऐसी स्टेम जानते हैं, पौधे के बीच का तना, ऐसे तने का यूज़ किया। जैसे कि आप मान लीजिए बांस, आपने देखा है ना, बम्बू देखा है ना, बम्बू का पेड़ होता है जो बांस का, तो बीच में कैसा होता है, हॉलो, खाली होता है, खोखला। तो ऐसा एक स्टेम चुना। उस स्टेम को चुनने के बाद दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि बड़ा भी था पुंगी से और चौड़ा भी उसने उसको चुना था। Stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes onto the body of the pipe. और उस पाइप की बॉडी पर लगभग कितने होल बनाए, 7 होल बनाए। उसके जो पाइप था उस पाइप पे 1 2 3 4 5 6 7 होल्स बना दिए। और होल्स बनाने के बाद व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, जब उसको बजाया कुछ होल्स को दबा देता था और कुछ होल्स को खोल देता था। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस। तो इस पुंगी से, इस बांसुरी से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत सुहावना, बहुत मीठा म्यूजिक निकलने लगा। क्या हुआ, उस बांसुरी से जो कि उसने 7 होल कर रखे थे, बार बार उस होल को खोलता था, बंद करता था, उससे क्या हुआ, मीठा, लुभावना, सुहावना, बढ़िया सा म्यूजिक उससे प्रोड्यूस होने लगा। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। वो बार बार, वही बार बार जिसने जो है, जो
कोर्ट में आता रहता था, बार बार आना जाना था उसका, उसने क्या किया, एक बम्बू का या किसी भी हॉलो स्टेम का एक तना तोड़ा, उसमें 7 होल किए, उसे बजाया तो म्यूज़िक अच्छा निकला। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस म्यूज़िक को महाराजा, राजा और बादशाह के सामने बजाया जाए। रॉयल कोर्ट में पेश होता है और सबके सामने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। जैसे ही बजाता है एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, सारे लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि वाह क्या म्यूज़िक निकल रहा है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और पुंगी से ये इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल ही अलग था। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, तो इसको एक नया नाम दिया गया, इस इंस्ट्रूमेंट को एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस बर्ड फर्स्ट प्लेस इन द शाह चैम्बर्स वाज प्लेड बाय अ नाई, तो तब से इसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई नाम इसका पड़ गया। और शहनाई को बजाने में, शहनाई को पहली बार इस संसार में लाने में जो नाम जाता है उस नाई के नाम जाएगा कि उसने सबसे पहले बादशाह के दरबार में इस शहनाई को बजाया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, और इसका नाम क्या रखा गया, शहनाई रखा गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर ऑस्पिशियस, द साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई का जो साउंड है उसको क्या माना गया है, इससे जो म्यूज़िक निकलता है, इससे जो ध्वनि निकलती है, उस साउंड को, उस म्यूज़िक को क्या माना गया, ऑस्पिशियस, पवित्र, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक, अच्छा साउंड माना गया। बिगिन टू कंसीडर ऑस्पिशियस, बहुत ही होली, जिसको होली बोलते हैं ना, पवित्र। And for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। और यही बात है, यही वजह है कि इसको आज भी बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे धार्मिक स्थानों पर और बहुत सारे नॉर्थ में ऐसी शादियां होती हैं, नॉर्थ इंडियन जो वेडिंग होती हैं, वहाँ पे इसको एक पवित्र ध्वनि, पवित्र म्यूज़िक माना जाता है। होली, इसको एक म्यूज़िक का दर्जा दिया गया। ऑस्पिशियस, जो वर्ड आया था ऑस्पिशियस, होली, पवित्र। नॉर्थ इंडियन वेडिंग जो होती हैं वहाँ आज भी शहनाई का ही ध्वनि सुनाई देती है, और बहुत सारे मंदिरों में भी आज भी। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशन असेंबल, पुराने ज़माने में शहनाई एक हिस्सा हुआ करती थी नौबत का। नौबत कहलाता है जब बहुत सारे लोग किसी कार्य करने के लिए एक जगह इकट्ठे हो जाएं, वो नौबत कहलाता था। असेंबल्ड होना, एक साथ एक जगह पर सभा का लगा लेना, असेंबल हो जाना, असेंबली का लगा लेना। द शहनाई वाज इंस्ट्रूमेंट, 9 instruments found at royal court. The शहनाई was part of नौबत and traditional assemble of 9 instruments found at royal courts। जब सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए तो शहनाई तो कोर्ट में बजती ही थी, साथ ही साथ 9 और भी इंस्ट्रूमेंट थे जो कि कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, तब से अभी तक ये इतनी पवित्र मानी जाती है कि इसको मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, लेकिन ये तो बजाया जा रहा था, लेकिन शहनाई को और आगे कौन ले गया, शहनाई को मेन दिशा में, मेन स्ट्रीम में और आगे तक ले जाने का श्रेय जाता है क्लासिकल गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आपने नाम सुना होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा क्योंकि बहुत सारे अभी नई जनरेशन के लोग हैं और ये बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई है और इनकी डेथ भी अभी कुछ साल पहले हो गई है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एज अ 5 years old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। जब ये 5 साल के थे तो ये गिल्ली डंडा खेलते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जब 5 वर्ष के थे, 5 years old, ही प्लेड गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। बिहार प्रदेश का एक ज़िला है दुमराव एक जगह है, दुमराव के पास एक तालाब के किनारे ये गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारजी टेम्पल, और साथ ही साथ पास में एक बिहारजी टेम्पल था, एक मंदिर था, हो सकता आज भी हो, वहाँ पर ये लगातार जाया करते थे, हमेशा जाया करते थे।
टू सिंग द भोजपुरी चैथा। किस लिए? वहाँ पर जाके भोजपुरी चैथा गाया करते थे। एक गीत होगा वहाँ का, ट्रेडिशनल सॉन्ग होगा, उस गीत को गाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। और जब चैथा समाप्त करते थे, भोजपुरी चैथा समाप्त हो जाता था, तो लास्ट में इनको अवार्ड के रूप में एक बड़ा सा 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता था। 1.25 किलो का बड़ा सा लड्डू, जिसका वज़न जो है, जिसका वेट 1.25 kg हुआ करता था। आज के टाइम पे आप लड्डू खरीदने जाएंगे तो 1 kg में आपको 30 to 40 लड्डू मिल जाएंगे, और 1 लड्डू इक्वल 1.25 kg। इट इज़ अ बिग लड्डू। 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और ये जो इनाम है उसे कौन दिया करता था? वहाँ के लोकल महाराजा उन्हें इनाम दिया करते थे, जब वो चैथा को ट्रेडिशनली तरीके से वहाँ पे सुना दिया करते थे या पढ़ दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago। और ये तो बात है 80 साल पहले की। And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। लेकिन तब से ये बच्चे ने और भारत रत्न जीतने तक की जो यात्रा है वो कैसे पूरी की? भोजपुरी चैथा गाया करते थे या गिल्ली डंडा खेला करते थे तब से, और 80 साल के बाद उनको क्या मिला? भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा क्या है? अवार्ड है। इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं होता, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड पाने के बाद उन्होंने ये यात्रा कैसे पूरी की, इस यात्रा को जानना ज़रूरी है। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 1916 में इनका जन्म हुआ। 21 मार्च 1916, अबाउट 105 years ago फ्रॉम टुडे। आज से 105 साल पहले की बात हो रही है। 2021 ये चल रहा है, 1916 की बात हो रही है, अबाउट 105 years ago की बात हो रही है। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे परिवार से थे जिनका परिवार संगीतकों से भरा हुआ था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अचानक से शहनाई बजाना शुरू कर दिया, अचानक से इनके अंदर जो है म्यूज़िक का एक भूत सवार हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आपको आपके पूर्वज से, आपके पिता से, आपके दादाजी से मिलती हैं, और वो आपके अंदर भी वो क्वालिटी बनी होती है। तो इनका जो परिवार था, ये सारे लोग म्यूजिशियंस थे, यानी कोई ना कोई काम में ये माहिर थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट्स। इनके दादाजी, जिसका नाम था रसूल बख्श खान, ये भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खान के दादा रसूल बख्श वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में बिस्मिल्लाह खान के दादाजी रसूल बख्श खान शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल इंसेक्टर्स। इनके पिताजी, जिनका नाम था पैगंबर बख्श, याद रखना आप सब नाम, बाद में क्वेश्चन आंसर आते हैं, ऑब्जेक्टिव आंसर आते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल इंसेक्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। इनके पिताजी पैगंबर बख्श और भी इनके परिवार के जो भी पूर्वज हुआ करते थे, जो भी ट्रेडिशनल परंपरावादी इनके घर के भी, और इनके मामा के यहाँ और मामा के पिता के यहाँ, नाना जी के यहाँ, सारे के सारे लोग शहनाई बजाया करते थे, और सबके अंदर शहनाई बजाने का एक हुनर था, इंस्ट्रूमेंट बजाने का। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन हिज लाइफ। इस बच्चे ने, कौन सा बच्चा? द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। इस बच्चे ने जल्द ही अपने जीवन में म्यूज़िक को उतार लिया। बिस्मिल्लाह खान ने जल्द ही अपने जीवन में म्यूज़िक को उतार लिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मटरनल अंकल्स। जब ये 3 साल के थे तो इनकी माताजी इनको इनके मामा के यहाँ ले गई। हाउस इन बनारस, जो कि कहाँ है इनके मामा का घर? बनारस में।
वाराणसी में है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। जब बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा जी को देखा कि वो शहनाई बजा रहे हैं, शहनाई अच्छे से बजाते हैं, सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श, उनका नाम क्या था, अली बख्श नाम था, और अली बख्श के साथ उन्होंने उस अपने आप को चाहा कि मैं भी अपने मामा जी के साथ जाया करूंगा, शहनाई को देखा करूंगा, उससे सीखा करूंगा, बजाया करूंगा और मेरे अंदर भी शहनाई बजाने का हुनर और गुण आ जाएगा। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। एक विष्णु टेम्पल था बनारस में, उस विष्णु टेम्पल में उसके मामा जी लगातार जाके शहनाई बजाया करते थे, और उसके बदले में उन्हें पैसे भी मिला करते थे। तो बिस्मिल्लाह खान भी मंदिरों में जाकर शहनाई को देखते थे कि उनके मामा जी किस तरह से शहनाई बजा रहे हैं। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, द बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स टू एंड। और जब उनके मामा जी शहनाई को, अली बख्श शहनाई को बजाया करते थे, तो बिस्मिल्लाह खान लगातार अपने मामा जी को देखते रहते थे। हियर यू कैन सी द brotherhood between Hindu and Muslim. A Muslim person go and sit in a temple to learn the music in his life. That is a very good example of brotherhood. भाईचारे का यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी किसी भी धर्म में जाकर अपने आप को सीख सकता है और उस धर्म से कुछ अच्छी बातें ले सकता है। कोई बुराई नहीं है, कोई भी किसी भी धर्म का कुछ भी सीख सकता है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे। आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए और फिर से जो भाईचारा हमारा बना हुआ था उसको बना कर रखना चाहिए। Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान भी जो है म्यूज़िक को बजाना सीख जाते हैं और म्यूज़िक बजाते बजाते जो है वो भी दिन दिन भर प्रैक्टिस करते थे इंस्ट्रूमेंट बजाने में और पूरा दिन लगा देते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya, the bank of Ganga, became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. For years, सालों तक, वर्षों तक बिस्मिल्लाह खान मंदिर में जाकर, बालाजी के मंदिर में जाकर और मंगला मैया के मंदिर में जाकर अपनी प्रैक्टिस करते रहे, शहनाई को बजाते रहे, अपने आप को और निखारते रहे। और उनका जो फेवरेट एरिया था, वो था गंगा का किनारा। गंगा के किनारे जाकर अकेले में उनका मानना था, सॉलिट्यूड, यानी उनका मानना था कि अकेले में ज़्यादा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को सीखा जा सकता है। जितना ज़्यादा पीस होगी, शांति होगी, उतना अच्छा आप उस चीज़ को सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो इस छोटे से बच्चे का, यानी उस टाइम पे बिस्मिल्लाह खान जब छोटे थे, इस छोटे से बच्चे का जो फेवरेट एरिया था वो था गंगा का किनारा। और गंगा के किनारे पर मंगला मैया का जो मंदिर था, वहाँ पर जाके अकेले में उस म्यूज़िक को वो सीखते थे, उसे बार बार बजाते थे ताकि उसमें और प्रैक्टिस हो सके। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम। गंगा का बहता हुआ पानी उन्हें और इंस्पायर करता था, और शक्ति देता था, और बल देता था, एक नई उमंग देता था कि कुछ ना कुछ नया करना है जीवन में और आगे बढ़ना है। टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और वहाँ पर बैठकर वो राग, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है दोनों पैरों को मोड़कर पालती मार कर बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, और राग, अपने जो भी उनके राग होते हैं, बहुत सारे राग होते हैं, उन रागों को वहाँ पर मजबूती देने का काम करते हैं, जिसमें सांस को लंबा खींच के राग अपना अलापा जाता है या जो भी किया जाता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में, तो वो राग वहाँ पर अलापते थे। और इस तरह से वो धीरे धीरे अपनी शहनाई बजाने की जो रेंज थी, जो सांस चाहिए, जो शक्ति चाहिए है, उसको बढ़ाते जा रहे थे। क्योंकि कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में सांस का बहुत रोल होता है, गाना गाने में सांस का रोल होता है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप स्विमिंग करोगे तो भी उसमें सांस की बहुत ज़रूरत होती है। तो जितनी जल्दी आपके अंदर, जितना ज़्यादा आपके अंदर सांस रोकने और होल्ड करने की शक्ति होगी, उतनी अधिक आप उस चीज़ को अच्छे से
कर पाओगे। दैट्स एंड ऑफ द lecture today. I hope you like the video. If you have any problem, you can comment us, and you can also come to the school to discuss with us. If you have any other problem, you can call me also. The remaining portion of this chapter will continue in the next video. Goodbye.